Good morning students, myself B.S. Chauhan from Indo-Bharat International Public School. Now chapter number 7 for class 9. Continue. Last exercise, inequalities in a triangle. Exercise number 7.4 is the last exercise. Okay. This exercise is the very important part of a triangle. Inequalities in a triangle. That means in a triangle, unequal parts. Maybe sides are unequal and angles are unequal. There are some properties. For first property, in a triangle ABC, all three sides are unequal. So what is the property of a triangle for inequalities? Suppose AC is greater than AB. Here is the first property for the sides. One side is the greater than the another side, then angle opposite to the greater is also greater. Means AC is greater than AB. So what is the angle opposite to AC? Angle opposite to AC is angle B, and angle opposite to the shortest side is AB, is angle C. So automatically this angle is greater than. It is given, so you can write this one. आप खुद सोच सकते हैं प्रैक्टिकली, अगर अपन सपोज एक साइड बड़ी करते हैं और ये ग्रेटर साइड है, अब मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली ये एंगल छोटा हो रहा है और ये एंगल बहुत ही बड़ा हो रहा है. जितनी साइड बड़ी होती जाएगी उतना ही एंगल बड़ा होता जाएगा, और जितनी साइड्स अगर छोटी हैं तो उतना ही वो एंगल भी छोटा होता जाएगा उसके सामने वाला. तो फर्स्ट तो ये हो गया. सेकंड, अब मैं एंगल की बात करता हूँ. ऐसे ही अगर सपोज एंगल B is greater than angle C, so what is the side opposite to angle B? Side opposite to angle B is the AC, and side opposite to angle C is the AB. So this time it is given and you can write AC is greater than AB. क्या देखा हमने? One side of greater than the opposite side, then angle opposite to greater side is also greater. Second thing, one angle is greater than the opposite angle, then side opposite to greater angle is also greater. Second property. And third property, in a triangle ABC, sum of two sides AB plus AC is always greater than AB plus AC is always greater than BC. Similarly, AB plus BC is greater than AC, and also finally AC plus BC is greater than AB. AB, BC, AC means sum of two sides in a triangle is always greater than third side. ये तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि एक ट्रायंगल में दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा ही होगा. क्लियर? दैट मीन्स इन ए ट्रायंगल यूज दिस ऑल थ्री प्रॉपर्टीज. ये थ्री प्रॉपर्टीज को आप इजीली यूज कर सकते हो, और इसको यूज करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज नंबर 7.4. Question number first. Question number first is given so that in a right angle triangle the hypotenuse is the longest side. ये तो आप पढ़ ही चुके हो कि hypotenuse is always longest side. अब इसको प्रूव कैसे करना है? तो सिंपली आपको क्या करना है? एंगल B is the right angle. Angle B is 90 degree. Sum of three angles in a triangle is always 180 degree. एक ट्रायंगल में तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है. तो हम ये कह सकते हैं कि बाकी के दो एंगल ऑटोमेटिकली 90 से छोटे ही होंगे, क्योंकि 90 से बड़ा होते ही वो 180 से बड़ा हो जाएगा, और ऐसा पॉसिबल है नहीं. तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि मैंने कहा एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C. तो अब मैंने क्या कहा,
side opposite to angle B, side opposite to angle B means AC. AC is greater than, अब यहाँ पर B के ऑपोजिट ये हो गया एंगल और एंगल C के ऑपोजिट हो गया AB। साथ में हमने ये भी कहा also एंगल B is also greater than एंगल A। तो एंगल B के ऑपोजिट जो साइड है वो है AC एंड इज ग्रेटर देन, इस बार A के ऑपोजिट साइड है BC। तो सिंपली फ्रॉम 1 and 2 we can say that all these two cases AC and AC are greater than the both the side. That means AC means hypotenuse, is longest side. It is proved. यही हमें प्रूव करना था। So this time you can prove in a right angle triangle hypotenuse is always longest side. Is clear? एक क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज गिवन in a figure. This time figure is given. Triangle ABC produce side AB to the point P and AC produce to the point Q. Already given. And also angle PBC, that means angle 1. PBC के मैंने angle 1 लिख दिया है आपको समझने के अकॉर्डिंग। angle 1 is less than angle QCB means angle 2. Now so that आपको प्रूव करना है। टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है वो देखना है। AC is greater than AB। लेस देन की जगह अपन एंगल 2 को ग्रेटर देन एंगल 1 लिख देते हैं, क्योंकि हम ग्रेटर के साथ में चल रहे हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, मैंने उस लेस देन की जगह एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 1 लिख दिया। मुझे एक बात बताइए, AC और AB तो साइड है ट्राइंगल की, और हम बात कर रहे हैं एंगल 1 और 2 जो एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। तो एक काम करते हैं, यहां पर मैं एक लाइन ले रहा हूं और सपोज ये एंगल 1 और 2 है। सम ऑफ एंगल 1 and 2 इज ऑलवेज इक्वल टू 180 बिकॉज लीनियर एंगल। एक लाइन पे दो एंगल बनते हैं तो उनका सम 180 होगा। अगर एक एंगल बड़ा है तो दूसरा एंगल ऑटोमेटिक लेस देन होगा, ये आप समझ सकते हैं। तो एक काम करते हैं, एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 1। एंगल 2 जो है वो एंगल 1 से ग्रेटर देन है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एंगल 1 एंगल 3। या एक काम करते हैं, वापस एंगल इसी के साथ आ जाते हैं ताकि इजीली, एंगल 1 इज लेस देन एंगल 2, तो एंगल दिस वन एंगल B, angle 1 is less than angle 2, that means so angle this B means angle ABC is greater than angle ACB। अगर ये लेस देन है तो ये बड़ा होगा, और अगर ये बड़ा है तो ये लेस देन होगा। तो हमने इस एंगल को इससे ग्रेटर देन कर दिया। तो अब इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है, AC। सो दैट मीन्स AC is greater than AB। Proved। कुछ नहीं करना है, अगर आप रीजन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साइड में, एंगल ऑपोजिट टू अनदर एंगल, द साइड ऑपोजिट टू, सिंपली लिख दो साइड ऑपोजिट लॉन्गेस्ट एंगल इज आल्सो लॉन्गेस्ट, दैट्स ऑल। ये अपन ने एक सिंपली
हमने प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, और हम यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए चल रहे हैं और उसी की प्रॉपर्टी की बेसिस पर हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं, और इस एक्सरसाइज को हम आज कंप्लीट करेंगे जिससे कि आपका चैप्टर नंबर 7 आपका कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 7 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 3rd, question number 3rd is figure is given already. Now A, B and O, D and C, अब जो गिवन है वो लिख दीजिए। एंगल B is less than angle A and angle C is less than angle D. Now show that to prove, देखो जो गिवन है, देखो फिगर गिवन है, मैंने फिगर ड्रॉ किया, जो गिवन है जो मैंने पार्ट्स लिख दिए, आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। एंड टू प्रूव AD इज लेस देन BC, ये आपको प्रूव करना है। वेयर इज AD? A to D मतलब ये कि ट्रायंगल के साथ में चलना है, एक इस ट्रायंगल और एक इस ट्रायंगल, ये दोनों का सम जो है वो बनेगा AD, और BC मीन्स CO प्लस BO, मतलब हमें दोनों ट्रायंगल को एक साथ लेके चलना है। तो करते हैं स्टार्ट। एंगल B और एंगल A, ये रहे एंगल B और एंगल A, तो पहले अपन इसके साथ लेते हैं। इन ट्रायंगल AOB, what is the given? In triangle AOB is given angle B is less than angle A। कुछ नहीं करना है, देखो लेस देन का साइन है तो यहाँ भी लेस देन लगेगा, यहाँ ग्रेटर देन है तो यहाँ भी ग्रेटर देन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल B के ऑपोजिट कौन सी साइड है? एंगल B का ऑपोजिट साइड एंगल OA, आप लिखिए OA। एंगल A के ऑपोजिट साइड कौन सी है? एंगल A के ऑपोजिट साइड है OB। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने आपको समझा दिया है एक टेक्निकली, वेरी सिंपल। दिस पार्ट इज द गिवन, इसी के लेस देन कोई चेंजेस साइन नहीं करना है, इसके ऑपोजिट साइड लिखना है, इसके ऑपोजिट एंगल लिखना है। यहाँ 1 पॉइंट है तो यहाँ 2 पॉइंट हो जाएंगे, यहाँ 1 पॉइंट होगा तो यहाँ पर 2, और यहाँ 2 पॉइंट होंगे तो यहाँ पर 1। इसका मतलब 1 के साथ में एंगल और 2 पॉइंट के साथ में साइड। ये आपने नंबर 1 लिख दिया, क्लियर? तो ये तो हो गया 1 ट्रायंगल। अब आते हैं अपन सेकंड ट्रायंगल, तो लिखते हैं यहाँ पर हम कौन सा ट्रायंगल लेकर चेक करें। ट्रायंगल COD, इस बार मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं। इस पार्ट में भी आपको क्या गिवन है? एंगल C इज लेस देन एंगल D, तो C के ऑपोजिट, वापस लेस देन है तो लेस देन ही साइन लिखेगा। एंगल C के ऑपोजिट एंगल कौन सा? एंगल D लिख दिया मैंने, और D के ऑपोजिट साइड जो है वो है OC, तो मैंने लिख दिया OC और नंबर 2 लिख दिया। वेरी सिंपल। आपको चाहिए AD। अब AD कैसे आ रहा है? OA और यहां पर एंगल C के ऑपोजिट OD, तो मैंने यहां पर OD नहीं लिखा था। अब आप कुछ नहीं करना है, बाई एडिंग 1 and 2, दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको अपना पार्ट्स मिल जाएगा। बाई एडिंग 1 and 2, चलो ऐड करते हैं। OA प्लस OD, अगर दोनों ये लेस देन है तो उनका एडिशन भी लेस देन ही होगा। OA प्लस OD is also less than, OA plus OD is also less than OB plus OC, OB plus OC. What is OA plus OD? OA plus OD means AD less than OB plus OC, OB plus OC is also BC। हमें क्या प्रूव करना था? AD plus BC, AD less than BC, AD less than BC, ये आपका रिजल्ट आ गया। प्रूव्ड, इजीली मैंने प्रूव कर दिया।
इसको नोट कर लीजिए इजीली और इसको समझ लीजिए। और करने का जो टेक्निक है वो मैंने आपको समझा दिया है। लेस देन के साथ में लेस देन, ग्रेटर देन के साथ में ग्रेटर देन, एंगल के साथ में साइड और साइड के साथ में एंगल, ये आपको चलना है। इसकी टेक्निक को आप समझ लीजिए, उसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। इसी में क्वेश्चन नंबर 4, ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं है, इसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन, कोऑर्डिनेटर गिवन है, एक ज्वाइन करो और उसको सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व कर रहा हूँ पहले। चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिव द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी। आपको एक कोऑर्डिनेटर गिवन है, ए बी सी एंड डी इज द कोऑर्डिनेटर, जिसमें ए बी जो है, ए बी इज द स्मॉलेस्ट है, ये आपको गिवन है। स्मॉलेस्ट का मीनिंग क्या हुआ? ये तीनों साइड से स्मॉलेस्ट है, 1 2 3। और सी डी जो है वो लॉन्गेस्ट है, सी डी, ये सी डी है, इज लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट का मीनिंग क्या हुआ? ये साइड इन तीनों साइड से बड़ी है, इसका कहने का मीनिंग ये है। अब प्रूफ क्या करना है आपको? मेन अपना एम क्या है इस क्वेश्चन में? हमें प्रूफ ये करना है, हमें प्रूफ ये करना है इसमें कि एंगल ए जो है वो ग्रेटर देन एंगल सी है और एंगल बी जो है वो ग्रेटर देन एंगल डी है। ये हमारा एम है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ए बी स्मॉलेस्ट है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर है और हम प्रॉपर्टी कर रहे हैं ट्राइंगल्स के लिए। तो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। एंगल ए और एंगल सी के साथ में जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल ये बनेगा। तो पहले अपन इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ए और सी को। ए बी इज द स्मॉलेस्ट, क्या लिखोगे आप? आपको सिंपली मैं एंगल 1 ले लेता हूं, एंगल 2 ले लेता हूं। मैं लिखूंगा ए बी इज स्मॉलेस्ट मीन्स लेस देन सी डी, सॉरी यहां पे ले लेता हूं बी सी, यहां ले लेता हूं बी सी, क्योंकि गिवन है ये स्मॉलेस्ट है, इसका मतलब ए बी जो है वो बी सी से स्मॉलेस्ट है। तो ए बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा हुआ? ए बी के ऑपोजिट एंगल 2 हुआ। एंगल 2 इज आल्सो स्मॉलेस्ट टू एंगल 1, एंगल 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। क्लियर? अब आते हैं अपन नेक्स्ट, बी सी। इसमें अपन ले लेते हैं ये साइड और एक साइड लेते हैं ये लिया। मैं ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम नहीं लिखा, इस बार लेता हूं इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी। पहले आप एक काम करना, इसमें ले लेते ना इन ट्राइंगल ए बी सी। ये ट्राइंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं, अब हम ट्राइंगल ए सी डी की बात कर रहे हैं। ए सी डी में भी हम क्या लिखेंगे? इसमें भी हम लिखेंगे ये लॉन्गेस्ट साइड है। अगर ये लॉन्गेस्ट है तो ए डी स्मॉलेस्ट होगी, तो आप लिखेंगे ए डी इज smallest to CD. तो what is the angle? This one 3 और this one is 4. तो 3 के ऑपोजिट साइड कौन सी हुई? CD, सॉरी एंगल कौन सा हुआ? एंगल 4 और लेस देन एंगल 3। इक्वेशन नंबर 2, एडिंग 1 and 2। कुछ नहीं करना है, पूरा एंगल ए चाहिए मुझे। एंगल ए तब मिलेगा जब 1 और 3 को ऐड करूंगा। यहाँ पर एक बार देख लो, ए बी मैंने लिखा, ए बी इज द लेस देन बी सी इज करेक्ट। ए बी के ऑपोजिट एंगल 2 इज लेस देन एंगल 1 इज करेक्ट। एंगल ए सी डी में मैंने लिखा ए डी इज द स्मॉलेस्ट टू सी डी इज करेक्ट। ए डी के ऑपोजिट एंगल 4 इज लेस देन एंगल 3, ये भी करेक्ट है। दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। आप भी थोड़ा इसमें ध्यान दे दीजिए। 1 and 2 को जब अपन ऐड करते हैं यहाँ पर, तो 2 + 4, एंगल 2 + एंगल 4 इज लेस देन एंगल 1 + एंगल 3। अब आप ध्यान से देखिए, एंगल 2 + 4 क्या बना? होल एंगल सी। 1 + 3 क्या बना? एंगल ए।
मुझे क्या प्रूव करना था, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, हो गया प्रूव, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। इसको ये लेस देन है तो ऑटोमेटिकली अब यहाँ इसको उल्टा कर दीजिए, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, ये मेरा रिजल्ट प्रूफ हो गया फर्स्ट, है ना। अच्छा क्वेश्चन। अब आपने प्रूव किया एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी, जैसे आपने ये प्रूव किया वैसे ही आप ये प्रूव कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, इसी डायग्राम को वापस बनाइए और डायग्राम को वापस बना के इस बार बी और सी डी के साथ चलना है, तो इस बार बी को डी से ज्वाइन करना और यहाँ एंगल का नेमिंग करना, जैसे 1 और 3 और 2 और 4 मैंने किया, और उसके साथ दोनों ट्रायंगल के साथ चलकर आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये रिजल्ट प्रूव किया वैसे ही आप नेक्स्ट रिजल्ट इजीली प्रूव करना अपने आप। तो ये तो हो गया आपका रिजल्ट। ये क्वेश्चन नंबर विच क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 तो आपने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट अपने आप कीजिए कंप्लीट, अपने आप मैं ये नहीं कराऊंगा क्योंकि सेम यही है, क्योंकि इस बार आपको क्या करना है, इस बार आपको करना है, मैं बता देता हूँ, इस बार इसको ज्वाइन करना है और कुछ भी नहीं है, बाकी सेम एज इट इज़ है और कुछ भी नहीं करना आपको। रिजल्ट वही है, साइड लॉन्गेस्ट जो भी हैं उसके ऑपोजिट एंगल लॉन्गेस्ट होगा, और एंगल लॉन्गेस्ट है तो उसके ऑपोजिट साइड भी लॉन्गेस्ट होगी। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ चलते हैं। ट्राइंगल इज ऑलरेडी गिवन, ट्राइंगल इज PQR, triangle PQR is given and PS is bisect, PS is bisect का मीनिंग हुआ bisect the angle QPR, QPR means angle 1 and angle 2 are equal, that means angle 1 is equal to angle 2, ये bisect कर रहा है। ये दोनों इक्वल है। देन प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट हमें प्रूव करना है, देखो जो जो गिवन है वो लिखते जाओ, आधा क्वेश्चन आपको वैसे ही सोल्व हो जाएगा। एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ, PSQ। अब ये मुझे प्रूव करना, पहले ये देखना कि एंगल है कहाँ, PSQ, PSR, PSR this angle and angle PSQ, PSQ this one। अब इन दोनों के बीच में मुझे रिजल्ट लेकर आना है। करते स्टार्ट। मुझे एक बात बताइए, हम कहते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ये तो आपको मानते ही हैं कि ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, तो मैं लिख सकता हूं दिस एंगल इज गेट इक्वल टू दिस प्लस दिस वन। तो अपन एक काम करते हैं, एंगल दिस वन इज सम ऑफ दिस टू एंगल। PSR, PSR के ऑपोजिट, PSR अगर मुझे प्रूव करना है PSQ, इन दोनों के बीच में रिजल्ट लाना है। तो इसके बीच में रिजल्ट लाने के लिए या तो अपन को इसमें इस एंगल को इन दोनों के सम के इक्वल करना है। तो पहले एंगल PSR इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल Q एंड एंगल PSQ, एंगल PSQ इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 प्लस एंगल R, एंगल R। एंड इसको ग्रेटर देन करने के लिए इसके, तो ऑटोमेटिकली अगर इक्वल है और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, एक पार्ट इसमें और गिवन है शायद, एक मिनट देख लेते हैं। इन फिगर PR, हाँ मैंने कहा ना इसमें एक चीज़ और गिवन है जो हमने मिस कर दी। इसमें ऑलरेडी गिवन है PR इज ग्रेटर देन, PR is greater than PQ and PS bisect, ये मैंने लिख ही दिया था,
और पी एस आर इज ग्रेटर देन इज पी एस क्यू। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये रिजल्ट आपको गिवन ही है, इसको नंबर 1 दे देते हैं। और नाउ पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, क्या हम लिख सकते हैं? अगर पी आर, व्हाट इज पी आर? पी आर इज दिस वन, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, सो व्हाट इज द पी आर? पी आर इस ट्राइंगल पी क्यू आर के लिए इस आर के ऑपोजिट एंगल कौन सा हुआ? क्यू। एंगल क्यू इज ग्रेटर देन पी क्यू। अब आर पी क्यू के ऑपोजिट कौन सा हुआ? आर, तो एंगल आर, राइट? कुछ नहीं करना है, जब ये ग्रेटर देन है तो एंगल क्यू के साथ में मैं क्या कर रहा हूं? एंगल इस क्यू के साथ में एंगल 1 को ऐड कर रहा हूं, एंगल 1। एंगल आर प्लस एंगल आर के साथ में मैं प्लस कर रहा हूं एंगल 2। वाई? बिकॉज एंगल 2 और एंगल 1 दोनों सेम है, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर इक्वल पार्ट को मैंने एंगल, अगर सपोज मैं आपको बताता हूं 7 इज ग्रेटर देन 3, अब मैं अगर 7 प्लस 2 इज ग्रेटर देन 3 प्लस 2, ये ग्रेटर देन रहेगा। अब आपको ये 2 और 2 जो इक्वल यहाँ तो नजर आ रहे हैं, लेकिन एंगल 1 और 2 इक्वल नजर नहीं आ रहे। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिस पार्ट इज द बाइसेक्ट इज दिस एंगल, तो इसमें एंगल 1 ऐड कर दिया, इसमें एंगल 2 ऐड कर दिया, तो इक्वल पार्ट को ऐड करोगे तो ये पार्ट भी पूरा ग्रेटर देन होगा। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन? एंगल क्यू प्लस 1, व्हाट इज एंगल क्यू प्लस 1? ये अपन ने लिख दिया, एंगल क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू एंगल पी एस आर। एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन, एंड व्हाट इज एंगल आर प्लस एंगल 2? आर प्लस एंगल 2 इज पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू। इट इज प्रूव, यही तो प्रूव करना था। कितना मजा आता है जब क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू ऑटोमेटिकली। क्या यूज किया हमने? कुछ भी यूज नहीं किया, सिंपली हमने दो प्रॉपर्टी यूज की, एंगल के बेसिस पे और साइड के बेसिस पे। और ट्राइंगल इन इक्वलिटीज, दिखने में ये एक्सरसाइज आपको टफ लगेगी, लेकिन जब आप सॉल्व करने बैठोगे, प्रॉपर्टी को यूज करना समझ जाओगे। ग्रेटर साइड जो है उसके ऑपोजिट एंगल ही ग्रेटर होगा, ग्रेटर एंगल है तो उसके ऑपोजिट साइड ग्रेटर देन होगी। सिंपली ये ध्यान रखना है। ग्रेटर के साथ चल रहे हैं अपन ज़्यादा। ऐसे ही स्मॉलेस्ट में अगर एंगल स्मॉलेस्ट है तो उसके साइड ऑपोजिट भी स्मॉलेस्ट होगी, अगर साइड स्मॉलेस्ट है तो उसके ऑपोजिट एंगल भी स्मॉलेस्ट होगा। ये आपको मेन ध्यान रखना है और इसी के बेसिस पे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन हम प्रूव करके इसको अपन चैप्टर को आज कंप्लीट करते हैं। चैप्टर नंबर 7, ये चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन। सो दैट द ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉ, ओके, कुछ भी नहीं है। वो ये कहता है एक लाइन है एल, ये आपको गिवन है और इस पे एक पॉइंट है। सपोज एक ऐसा पॉइंट जो मैंने यहां पे लिया, सपोज पी, जो इस लाइन पे नहीं है, और इस पॉइंट से मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ऐसे ड्रॉ करते जाओ। प्रैक्टिकली आप क्या देखोगे, सबसे स्मॉलेस्ट साइड कौन सी होगी? जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। 90 डिग्री का एंगल ही इसकी स्मॉलेस्ट होगी। अब ये प्रूव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, सपोज ये लाइन गिवन है और पॉइंट पी ये गिवन है। अगर मैंने इन सभी लाइन में से किसी एक लाइन के साथ में प्रूव कर दिया तो ऑटोमेटिकली सबके साथ प्रूफ हो गया। तो एक काम करते हैं, अपन 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं पहले पी क्यू, और ये लाइन अपन ले लेते हैं। अब ये लाइन चाहे वो जस्ट इसके पास में हो, लेकिन पास में समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया ये आर। तो ट्राइंगल बना लिया। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर क्या कहा हमने? एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल आर। और एंगल क्यू के ऑपोजिट साइड क्या हुई? पी आर। तो पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। दैट मीन्स पी क्यू इज लेस देन पी आर। सो पी क्यू इज स्मॉलेस्ट।
फर्स्ट क्वेश्चन में भी अपने ये सोल्व किया था, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज द लॉन्गेस्ट साइड, तो वो भी एक पार्ट था। तो यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट से अपन एक लाइन पर लाइंस ड्रॉ करते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट जो साइड होगी वही राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगी। उसके बाद में जो साइड्स आगे आगे चलती जाएगी वो बड़ी होती जाएगी, यानी कि हाइपोटेन्यूज बनती जाएगी, वो लॉन्गेस्ट होगी। तो सबसे स्मॉलेस्ट साइड वही है, आगे आप बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ये लॉन्गेस्ट होता जाएगा। ऐसे ही चाहे इधर लेफ्ट में चाहे वो राइट में। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि फ्रॉम एवरी क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि सो दैट द ऑल लाइन सेगमेंट draw from a point not lie on this line, the right angle side is the smallest, it is the proof। ये आपको प्रूफ करना है, तो हमने प्रूफ कर दिया, यही आपको प्रूफ करना। एक बार ये डायग्राम बनाना है, एक बार ये डायग्राम, और उसके बाद में ये पार्ट आपको लिखना है। बहुत ही इजी पार्ट में है और ज़्यादा इसमें स्टेटमेंट नहीं है और इजी फॉर्म में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया आपको। ओके, thank you. Okay students, now good day.